خداؤں کی ضرورت پڑتے ہیں جو بول رہے ہیں تیری ہے تیری
آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ربا بابا بابا، وہ جو ہماری مدد کرتا، ہماری رہنمائی کرتا ہے، آئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریبا شوکولو مارابا لاستوکو شید بیبریا ریبا سوتوکوما سنداریا رو شید بیبریا ریبی بی 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 سوتوکو بریا۔ آئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ جو عظیم خدا ہے، وہ جو جلالی خدا، وہی فتح مند خدا، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا بلند و بالا ہے تو بھی وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ آئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے
دن کے لیے، اس وقت کے لیے، ان قیمتی لمحات کے لیے جو خداوند نے میری زندگیوں میں اور آپ کی زندگیوں، ہم سب کی زندگیوں میں خداوند نے یہ لمحات ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم اس کی ورشپ کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں اور اس کے نام کو مبارک کہنے والے بن سکیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شدوں کو مانا سی بارا لاکھوں شندہ ربا رابارا شندہ ربا، آئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کرتے ہیں۔ جتنی ورشپ ہو چکی ہے شکر کرتے ہیں، باقی کے وقت میں خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی چاہتے ہیں، آئے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بھائی سنی سے میری گزارش ہے وہ سامنے آئے اور شکر گزاری کی اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آمین۔ Thank you, Jesus. بچے تعلیم کی جو تھا جو ہے جو آنے والے ہیں خدا کا اس کے شکر ظاہر کرتے ہیں، اس موقع کے لیے اس کو پڑھتی تاکہ آپ سے چپ کر آپ نے نہ کر سکیں، آپ کی بریک کر سکیں۔ خدا تعلیم ہم بہت سے لوگوں کو تعلیم پانا نہیں کرتا ہوتا ہے، آپ کی مدد نہ کر سکیں، آپ کی پریکٹس کر سکیں، آپ کی شکر کر سکیں، آپ آپ کر اور ہماری پلیس کی گیم آپ سکتی ہیں، ماں آپ کے پیارے بیٹے کے نام سے۔ Hallelujah. I am the Lord. Thank you, Jesus. اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، نہایت زندگی کے ساتھ آئے اس کی ستائش اور اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. آئے نہایت زندگی کے ساتھ اس کی ورشپ کرتے ہیں، اس کے نام کو بند کرتے ہیں۔ Hallelujah. Thank you, Jesus. اپنے آپ کو اس کی ستائش میں، اس کی پرستش کے لیے دے دیجیے۔ ہاللیلویا۔
ही मुश्किल के लायक है, उसके जैसा उसकी मर्जी कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। ऐब भरा है तू, ऐब यहूदा तू, ऐब भरा है तू, ऐब यहूदा तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु आके है, तू बाकी है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु बाकी है, तू बाकी है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। बेशक मेरा और आपका खुदा ही है, वो प्रस्तिश के लायक है, वो सजदों के लायक है। आए अपने खुदावंत के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। जोरदार तालियां। वो भी सुनाने के लायक है। आए उसकी प्रस्तिश में, अपने खुदावंत की सताइश में आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को मुबारक करते हैं। कितने खुदावंत की सताइश करने के लिए तैयार है? हालेलुया। बोले हालेलुया। आए मिलकर खुदावंत की सताइश में, उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंत ही है जो इबादत के लायक है, जो सजदों के लायक है, प्रस्तिश के लायक है। आए आज की सुबह हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। उसकी सताइश में, उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और खुदावंत के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise Jesus. यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
इसका लहू हमें गुनाहों से धोता है। हालेलुया। यूहन्ना के खत में लिखा है और यीशु मसीह का लहू तमाम गुनाहों से हमें पाक
اور صاف کرتا ہے. हालेलुया. جو بھی یسوع کے لہو سے دھلتا ہے, جو بھی اپنی زندگیوں پر یسوع کے لہو کو مانگتا ہے, یسوع جو ہے اپنے لہو کی قدرت سے, اسی لہو کی قدرت سے جو اس نے میری اور آپ کے گناہوں کی خاطر کوئے کلوری پر بہا دیا, اور وہی لہو آج بھی میری اور آپ کی شفا کے لیے جاری اور ساری ہے, اور وہ آج بھی ہمیں گناہوں سے, بیماریوں سے اور پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. آئیے یسوع مسیح کے لہو کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللویا. اسی کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی. آمین. مسیح نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان قربان دی اور کفارہ دیا, اور اس سبب سے میں اور آپ آج خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں. آمین. تو آئے خداوند کی ستائش میں, خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے اس کی رات کو مبارک کرتے ہیں. ہاللویا. آئے خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہیں, اس کی رات کو مبارک کرتے ہیں. تھینک یو جیسس. چلو مل کر اس کی ستائش کریں اور اس کے لیے بجائے تالیاں بجائیں, اس کے لیے گائے, اس کے نام کو مبارک کریں. ہاللویا. تھینک یو. تیرے روح کا ایسا چاہیے, تیرے روح کا ایسا چاہیے, آج تیری شفا چاہیے, آج تیری شفا چاہیے, تیرے روح کا ایسا چاہیے, تیرے روح کا ایسا چاہیے, آج تیری شفا چاہیے, آج تیری شفا چاہیے,
हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद कर, अपने स्वरों को झुकाए। थैंक यू जीसस। आए उसका शुक्र करते हैं, उसके मसा के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके बातों की ममूरी के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने स्वरों को झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। रबा शिद्धो खमारा सिद्धि बिगलो शोधोरबा। आए उसका शुक्रिया अदा करें और उसके आ जाने के लिए, उसकी इस हजूरी के लिए, उसकी ममोरी के लिए, उसकी कुदरत के लिए जो वो अपने लोगों को और छू रहा है और अपनी कुदरत से अपने लोगों को आजाद कर रहा है। आए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन जब उसके लोग उसकी सिताइश करते हैं तो खुदावंद का तख्त जो है और उनके दरमियान लग जाता है और वो अपने लोगों की प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता है। आए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मसा, इस बहाव के लिए उसका शुक्र करते हैं। जितनी जिंदगियां इस वक्त खुदावंद के हुजूर में झुकी है उसका शुक्रिया अदा करते हैं और जो वर्शिप खुदावंद के लोगों ने उसके हुजूर में की है उसका शुक्र करते हैं। बाकी के वक्त में और उसकी कुदरत को, उसकी और मसा को मांग लेते हैं और उसकी हजूरी को, उसकी कुदरत को जो है हम उसके हुजूर में मांगते हैं। हालेलुया। आए शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम मुबारक। हालेलुया। रुकना से मेरी गुजारिश है कि वो और जो वो सामने आए और इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. दूसरे बार के खाली तो हमारे खुदा
मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस पाक मुकद्दस दिन के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में ये दिन बख्शा के हम तेरी हम दोस्ताइश तेरी तारीफ कर सके। खुदावन तुझसे कोई खुदा नहीं जिसकी हम तारीफ करें, तू जिंदा खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के खुदा प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, आए हुए लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी पाक कलीसिया तेरी दुल्हन के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा, तेरी हम दोस्ताइश के लिए कि खुदा तेरे लोग तुझमें भरते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। खुदा आज जब तेरा रसूल कलाम करे तो खुदा हमारी जिंदगी तब्दील हो खुदा। आज मैं तेरे घर में खुदा अपनी रहाई के लिए नहीं बल्कि खुदा कुल कायनात की रहाई के लिए तुझसे दुआ मांगती खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में रहाई लेके आए खुदा। खुदा आज हम तुझ में रहा हूँ खुदा, मैं तुझ में सुकून पाऊँ खुदा, तुम्हारे खानदान है खुदा, तेरी कलीसिया तुझ में बढ़ती जाए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा। खुदा इस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज जो तूने हमारे लिए नाज़िल फरमाया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी पाक हज़ूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा, और एक एक घराने के लिए तेरे से बरकत मांगती हूँ खुदा। हर घर खुदा बरकत होकर तेरे घर को लौटे खुदा, जब अपने घरों को जाए तो अपने बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के वसीला से करे। ये सब कुछ मांगती तेरे प्यारे बेटे अपने यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। खुदा की हजूरी को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। कितने और प्रस्तिश के वसीले से बरकत पाना चाहते हैं? आमीन। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आप भूल जाए कि आपके साथ कौन बैठा है, आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन है। बस इस बात को याद रखें कि आज मैं और मेरा यीशु इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। हालेलुया। जब आप अपना ध्यान अपनी सोचो अपने खुदावन की तरफ लगाएंगे, ईमान के बानी काबल करने वाले यीशु मसीह को आप तकना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यकीनन वो आप सबको छुएगा, बरकत देगा और आपको रिहा भी करेगा। आमीन। यकीनन छूने वाला है, शिफा देने वाला है और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बंधनों से रिहाई पाए और खुदावंद एक नया काम आज के दिन आपकी जिंदगी में करे, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारे मसाइल हमारी मुसीबतों को खुदा आज की सुबह खुदावंद जो उन्हें और हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, बीमारियों को दूर कर दे, तो आए वर्शिप करें, आए प्रस्तुत करें और देखिए कैसे खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। आए सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं, प्रेज़ जीसस, सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं और उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसकी सितारिश करेंगे, उसकी प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। वो मेरा और आपका खुदावंद हमें छूने वाला है और बरकत देने वाला खुदावंद है। मैं चाहूंगा मिलकर प्रस्तुत करें, तालियां बजाएं और उसके नाम को मुबारक कहें। हालेलुया। और जब हम प्रस्तुत करेंगे तो मायूसी के और हर तरह के जो डिप्रेशन, हर तरह की मायूसी जो है वो आपकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा की जाती रहेगी। हालेलुया। बोले हालेलुया। आज जोरदार ताली। मेरा दुआरी सहारा मेरा दूरी, गफारा मेरा दूरी सहारा मेरा दूरी,
हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा आए जो मेरा और आपका सहारा है, जिसने फरमाया देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, उसी ने क्या फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे आए। अपने खुदावंद के लिए, अपने मुनज्जी के लिए, जिसने मेरे साथ आपके साथ वादा किए, जोरदार तालियां उसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी
ऊपर चीज रखे सब बैठे हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज जीसस आए अपनी आंखों को बंद करते हैं निहायत संजीदगी के साथ अपने सर को झुकाते हैं खुदावंद की हजूरी में जीसस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं हालेलुया प्रेज तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने कदूस वो ही है पाक खुदा कदूस वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटकाया तेरे को देवी तो भी बड़ा पाया तेरे को Hallelujah. 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 कदमों से तेरे धोने ताजा बनी वही खाए बरसती शिवाला अपने माला भरपूर जीवन माए कदमों से तेरे धोने ताजा बनी वही खाए बरसती शिवाला अपने माला भरपूर जीवन माए अपने आप को बंद रखे अपने स्वरूप को झुकाए रखे आए अपनी जिंदगी के उसके हजूर में कलाम को मांगते मैं चाहता हूँ सब जुबानें खुले बेशक हमने वर्शिप की है उसकी सताइश की अवंत है कि वो मुझसे और आपसे कलाम करे रा बा 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 बा
सिद्धो खमा शिद्धी ब्रियाना सुनो। आए अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए उसके हजूर में कलाम को मांगेगा। उससे कहिएगा कि खुदावंद आज तू मेरी और तरक्की, मेरी बढ़ोतरी के लिए और मेरी शिफात के लिए तू आज कलाम करना। रबा शिद्धो लकमा कहना शुरू कीजिए, खुदावंद आज मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ बोल, आज तू मेरे साथ कलाम कर और अपने कलाम के वसीले से मेरी कान छाड़ कर खुदा मेरी तरक्की के लिए बोल, मेरी और रूहानी मजबूती के लिए बोल, मेरी शिफा के लिए तू कलाम करना। और आज खुदा तेरे कलाम के वसीले से मैं एक नई ताजगी को, फ्रेशनेस को लेना चाहती हूँ। आए अपनी जिंदगी के लिए उसके हुजूर में उसके कलाम को मांगिएगा। हालेलुया। कलाम खुदा के लिए दुआ कीजिएगा, सब दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। बहन सोनिया से मेरी गुजारिश है कि वो और कलाम खुदा की इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सब दुआ कीजिए और बहन जो है वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। आए हमारे बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की तमजीद करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तूने आज सलामती से यहाँ पहुँचाया बाप खुदा, अपनी हजूरी में झुकने का बारी फजल दिया, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। खुदा तू बड़ा खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुष्ट रहती है, तो अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाक खुदा तूने हमें संभाला पाक खुदा, और आज का दिन बख्शा, ये तेरी लाजवाब मोहब्बत है पाक खुदा। है यहोवा यरी, हमने पाक खुदा प्रस्तिश के जरिए पाक खुदा अपनी आवाज़ों को तुझ तक बुलंद किया, तेरी मदद सराई की है पाक खुदा। हमारी पाक खुदा प्रस्तिश करना, हमारी दुआएं इल्तिजाएं तेरे हजूर बखूर की माने पहुंचे। और पाक खुदा वक्त है कि हम तेरे मुँह की मीठी बातों को सुने पाक खुदा। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, इस जगह पर मौजूदगी की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से तो हमारी कान छान करना पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से पाक खुदा डेरों बरकार को हासिल करे। आज के कलाम के वसीला से ताजगी कुव्वत पाए पाक खुदा। तेरे खादिम को, तेरे बंदा को तेरे हाथ में दे देती हूँ पाक खुदा, और उनका दुगना मसर देकर अपने बंदा को इस्तेमाल करना, ये सुनाश्री अल्फाज की तरतीब बख्शना और लाइव तौर से ताकि कलाम को बयान कर सके पाक खुदा। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो पाक खुदा। तेरा अब्बर, तेरी हाजूरी, तेरा मसा इसी तरह पाक खुदा इस जगह पर मौजूद रहे। एक एक जिंदगी जो इस जगह पर मौजूद है पाक खुदा, तेरी हुजूरी से बरकत को चाहती हूँ। जो कुछ मांगा है सब कुछ पा लिया, बड़े ईमान के साथ पाक खुदा ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सब खुश है? कितनों ने प्रस्तिश के वसीले से बरकत पाई है? खुदा उनके दिल आपकी है, दो ताली। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के हम शुक्रगुजार हैं। खुदा हमने ये दिन हमें दिया है ताकि इस दिन में खुदा उनकी प्रस्तिश कर सके, उसकी सताइश कर सके और उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रही? किसी को नहीं? फिर अपने लिए तारीफ करें। चंद बातें हम सीखेंगे, बहुत अहम बातें खुदा के कलाम में से आज मैं और कुछ तालीमी बातें होंगी, ताकि आज जब आप बेहतर तौर पर मसीही होते हुए, खुदा के लोग होते हुए चंद बातों को सीख सके और उसके दूर से बरकत पा सके। और कुछ तालीमी बातें आज की जाएंगी ताकि वो आपके लिए तरक्की का बायस हो, बेहतरी का बायस हो। और यकीनन आप बहुत दफा जोश वाला कलाम भी सुनते हैं और बहुत सारे पैगामात आप तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन आज कुछ सीखेंगे खुदा के कलाम में से। और जो मसीही होते हुए, कलीसिया होते हुए हमें पता होना चाहिए बुनियादी बातों का। तो आज कुछ बातें खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ जरूर लाए होंगे। कितनों के पास उनकी बाइबल मुकद्दस है? मेरे पास तो मेरी बाइबल है। कितनों के पास है? अब एक चीज आपको बता दूं, बहुत दफा
बाइबल मुकद्दस साथ नहीं लाते। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मुझे तकरीबन खिदमत में 15 से 16 साल, 16 साल हो चुके हैं खिदमत में। तो मैं जब से मैंने तौबा की है, खुदा उसको कबूल किया है, तो आप यकीन करिए जो बाइबल है, मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ खिदमत में, मैं हमेशा इसको अपने से साथ रखता हूँ। आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस साथ लाया करें। मैं आपको चीज बताता हूँ, जब आप कहीं कभी स्कूल जाते हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, तो आपको पता है कि जब आप स्कूल जाते होंगे, आपको याद हो, तो आप विदाउट बुक्स तो कभी नहीं जाते। अब मुझे याद है एक दफा मैं शायद 6ठी क्लास में था या 5वीं क्लास में था, तो बहुत देर पहले की बात में, बचपन में, तो एक स्टूडेंट था हमारी क्लास में, तो वो विदाउट बुक्स आ गया, ठीक है, किताबों के बगैर आ गया। तो वो किताबों के बगैर आ गया, बैग नहीं था, किताबें नहीं थी। तो जो हमारे उस्ताद थे, जो टीचर था, उसने कहा कि वेयर योर बुक्स, किताबें किधर है तुम्हारी। उसने कहा कि सर किताबें तुम्हें घर भूल है। उसने कहा चलो फिर आप भी घर जाओ, जब किताबें नहीं है तो पढ़ोगे कैसे, मैं किधर से पढ़ाऊंगा, कैसे जो मैं पढ़ाऊंगा, लेसन दूंगा, कैसे उसको याद रखो, कैसे नोट करोगे। तो याद रखिए, जो चर्च है, ये भी मैं आपको बता दूं, कलीसिया जो है, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆते, मैं उनको कार नहीं भेजागा, ये सानू भी पास मैं सिखाने के लिए कि जो चर्च है ये एक इदारे की तरह है, ये भी एक तरह के एक इंस्टीट्यूट है। अब बाइबल मुकद्दस जो है आप घरों पर भी पढ़ सकते हैं। चर्च आने का मकसद क्या है, आप सीखे मेरी बात को। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर सिर्फ तिलावत नहीं की जाती, बल्कि सिखाई जाती है, तशरीह की जाती है, बयान किया जाता है। और खुदा ने जो चर्चिस के अंदर पासवान होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, खुदा ने मुकर्रर किया है ताकि वो जो उसकी खुदा की कलीसिया है, जो मसीह की कलीसिया है, वो उन्हें जो है वो और तालीमी तौर पर उन्हें सिखा सके, कलाम की बातें उन तक पहुंचा सके, ताकि उनकी जिंदगी के लिए तरक्की का और मजबूती का बायस बने। बोले आमीन, हालेलुया। तो चर्च जो है, चर्च में बाइबल मुकद्दस लाया करें ताकि जो भी खादम, जो पासवान कलाम सिखाए, बातें सिखाए, आप उन्हें सीखे, ना सिर्फ सीखे बल्कि उन्हें नोट भी किया करें और अपने घरों में जाकर उस पर गौर ख्वास किया करें, ताकि आप जब वो और खुदा में बढ़ते जाए और खुदा में मसरूर होते जाए। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि अब दुआ तो हम घर पर भी कर सकते हैं, अब कलाम बाइबल मुकद्दस को हम घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चर्च आने का पर्पस क्या है, खुदा के घर में आने का मकसद क्या है? खुदा के घर में आने का मकसद यही है ताकि हम खुदा की बातों को सीख सके और उस पर अमल करने वाले बन सके। यहोशुआ के साथ खुदा ने कलाम किया। खुदा ने यहोशुआ से कहा कि शरीयत की ये किताब, कौन सी किताब जी? सब अपनी बाइबल मुकद्दस ऐसे ऊपर उठाइए। अब सुनिएगा, खुदा ने यहोशुआ से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से बल्कि दिन और रात तेरा इसी पर क्या हो, ध्यान हो। जब दिन और रात तेरा इस किताब पर, जो किताबें मुकद्दस मैंने दी है, जो कलाम मैंने दिया है, खुदा ने यहोशुआ से कहा जब दिन और रात तेरा इस पर ध्यान होगा, तो इस पर तवज्जो करेगा, ध्यान करेगा, तो फिर तुझे इकबाल मंदी की राह क्या होगी, नसीब होगी, और तू खूब क्या होगा, कामयाब होगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो इसलिए जरूर आया करें चर्च में और बाइबल मुकद्दस लाया करें ताकि आपको याद हो कि ये हवाला जात और जो सुनाए गए, पढ़े गए, और ताकि अपने घरों में जाकर भी उन पर गौर ख्वास किया करें। इस तरह आप खुदावंद के भेदों को, खुदा के कलाम को जो वो आप समझते जाएंगे और उसके में बढ़ते जाएंगे। आमीन, आमीन। आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे जी फास्टिंग के बारे में, रोजे के बारे में। आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे कि बहुत सारे लोग यकीनन जानना चाहते हैं कि क्रिश्चियन रोजा जो वो क्या है, क्रिश्चियन रोजे की इम्पोर्टेंस क्या है, मसीही रोजे की अहमियत क्या है। तो आज हम खुदा के कलाम में से मसीही होते हुए, कलीसिया होते हुए, आज मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपको सिखाऊंगा कि मसीही रोजा है क्या। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर कलीसिया में इस बात की बहस होती है
کہ روزہ جو ہے وہ کب تک ہونا چاہیے، یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، اس کی مدت کیا ہونی چاہیے، اس کی اوقات کیا ہونی چاہیے. ہے نا سب کے لیے مسئلے کی بات؟ جتنوں کے لیے مسئلے کی بات ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی نہیں سمجھ کہ روزہ کب اور کس وقت اور کتنی دیر کے لیے رکھنا چاہیے، آج خدا کے کلام میں سے یہ باتیں، خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ میں چند باتیں شیئر کروں گا تاکہ آپ سیکھ سکیں اور اس کے حضور سے برکت پا سکیں. آمین. ہاللویا. بولے ہاللویا. اس سے پہلے ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا. متی کی انجیل، کلام خدا میں سے متی کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت. متی کی انجیل 6واں باب 16ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. ہاں جی نکالیے سب نے والا. متی کی انجیل 6واں باب 16ویں آیت. اب سنیے گا یہ جو باتیں مسیح خداوند کی جو پڑھنے لگے ہیں، یہ جو کلام میں سے جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں، اب غور فرمائیے گا. 5ویں باب سے لے کر 7واں باب جو ہے اسے پہاڑی باز کہا جاتا ہے. 5ویں باب سے لے کر جو 7واں باب ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ اب یہ میں نے کہا کہ کچھ تعلیمی باتیں بھی آپ سیکھیں. یہ پہاڑی باز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باتیں مسیح خداوند نے ایک پہاڑ پر بیٹھ کر کی تھی. جب 5ویں باب سے لے کے آپ 7واں باب پڑھیں تو وہاں پر مسیح خداوند نے ایک پہاڑی پر بیٹھ کے یہ باتیں اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلتے تھے، جو اس کی باتیں سنتے تھے، ایک پہاڑ پر بیٹھ کے مسیح خداوند نے یہ باتیں کہی تھی. تو 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک ان باتوں کو پہاڑی باز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ بہت خاص باتیں تھی جو مسیح خداوند نے پہاڑ پر بیٹھ کے اپنے شاگردوں سے کی. اب یہ جو 6واں باب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ پہاڑی باز میں سے اور بڑی خاص باتیں تھی. ان کو بڑی خاص، یقیناً مسیح خداوند نے جتنی باتیں کہی اپنی زمینی خدمت میں وہ ساری بڑی خاص تھی، بڑی اہم تھی، لیکن یہ بہت خاص باتیں تھی جو پہاڑی باز میں مسیح خداوند نے کی ہے. ان پر ہم غور کریں گے. 6واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 16ویں ہے. مسیح خداوند نے کیا فرمایا؟ اور جب تم روزہ رکھو، جب تم کیا کرو جی؟ سب توجہ فرمائیں. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. 17ویں ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. کلام مقدس کا پڑھا جانا، کھولا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے. آمین. مل کر بولے آمین. اب چند باتیں میں پرانے عہد نامے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم مسیحی روزے پر واپس آئیں گے کہ اصل میں مسیحی روزہ ہے کیا. اور میرے سے جو روزے کے معنی میں آپ کو بتا دوں، روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا. روزے کا مطلب کیا جی؟ اپنی جان کو کیا دینا جی؟ اب میں ایک چیز بتا دوں کہ پرانے عہد نامے کے مطابق جب بھی کسی نے روزہ رکھا، جتنوں نے روزہ رکھا انہوں نے اپنی جان کو کیا دیا؟ اپنی جان کو دکھ دیا. یعنی بہت سارے، میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں، جب بھی روزہ رکھے تو روزہ جو ہے وہ خوشی کا روزہ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا تھا کہ خداوند ہمیں فریج دے دے، آپ کا مقصد ہے روزے کا. خداوند ہمیں کیا دے دے جی؟ اب فریج خداوند نے دے دی ہے تو آپ نے خدا کے حضور میں گریازاری کی ہے، التجا کی ہے کہ خداوند ہمیں نئی فریج چاہیے، پلاٹ چاہیے، گھر چاہیے، غربت سے رہائی مل جائے، نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، مسائل ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، بیماری. مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا ہے کہ خداوند مجھے یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے مجھے رہا کر. آپ نے روزہ رکھا ہے کہ خداوند مجھے یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے مجھے کیا کر دے تو. کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے اور خداوند نے آپ کو اس بیماری سے رہا کر دیا.
खुदावन ने उस मुसीबत से, जिस मुसीबत के लिए आपने रोजा रखा, खुदावन ने आपको उस मुसीबत से क्या कर दिया? रिहा किया। अब जब खुदावन ने रिहा कर दिया, आजाद कर दिया, तो याद रखे बहुत सारे मुझे किसी के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि पाल साहब खुदा ने हमारा ये मसला हल कर दिया, हमने रोजा रखा था, अब मैंने शुक्रगुजारी का रोजा रखना है। अब मैंने क्या करना जी? सालों हमने क्या करना जी? तो कलीसिया के लोगों सुन ले मेरी बात, सीख ले, शुक्रगुजारी का कोई रोजा नहीं है। मैंने आपको रोजे के लफ्ज़ मानी बताए हैं। रोजे का मतलब है अपनी जान को क्या करना? अपनी जान को दुख देना। यानी इसका मतलब ये है, अगर आप पुराने अहनामे को देखें, मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करूं, सीखते जाइएगा इन बातों को। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर की किताब 4 बाब 15वीं आयत से 16वीं आयत तक, मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, आप जरूर से नोट कीजिएगा। आस्तर ने जो खुदा की बंदी थी और उसने 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर की किताब में आपको इसका जिक्र मिलेगा, 4 बाब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका जिक्र मिलेगा। अब आस्तर ने रोजा रखा, उसका एक पर्पस था। उसने ना सिर्फ उसने रोजा रखा, बल्कि आस्तर के जितने भी उसके लोग थे, जो आस्तर और मर्द की वो सारे जो इस्राएली लोग थे, उन सब ने मिलकर क्या रखा जी? रोजा रखा। उन सब ने मिलकर क्या रखा जी? रोजा। कितने दिन का रोजा रखा जी? 3 दिन का। कितने दिन का रोजा रखा? अब 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 3 दिन उन्होंने खुदा के हजूर में इल्तिजा की, गिरियावजारी की। और बेसिकली रोजे का जो मैंने बताया, ये अपनी जान को दुख देना। और दूसरी बात, रोजा जो है ये एक तरह की कमिटमेंट है। रोजा एक तरह की क्या जी? कमिटमेंट। यानी आप अब खुदा के हजूर में अपनी को बात मनवाने के लिए रोजा रखते हैं। अब आस्तर ने रोजा रखा कि वो खुदा के हजूर में रोजा रखा, क्योंकि वो अपना एक काम, अपना एक प्लान था, उनका मंसूबा था, और उस मंसूबे को खुदा के हजूर में वो चाहते थे खुदा पूरा करे। और वो चाहते थे कि खुदा हमारे इस मंसूबे को पूरा करे। जब तक खुदा हमारे मंसूबे को पूरा नहीं करेगा, हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। आमीन। तो रोजा जो है वो एक कमिटमेंट का नाम है। आप भी खुदा के हजूर में इस तरह की कमिटमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है, आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की रुकावटें हैं, परेशानी है, बीमारियां हैं, गुर्बत है, किसी भी तरह के मसाइल है, आप खुदा के हजूर में कमिटमेंट कर सकते हैं। क्या कमिटमेंट कर सकते हैं? मैंने कहा आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। कितने दिन का जी? खुदा की बंदी। आप भी खुदा के हजूर में कमिटमेंट कर सकते हैं कि खुदावंद जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा, मेरे मसाइल हल नहीं करेगा, मेरी मुसीबतों को दूर नहीं करेगा, मेरी इस बीमारी से मुझे निजात नहीं देगा, रिहाई नहीं देगा, मैं खुदावंद तेरे हजूर में झुका रहूंगा, झुकी रहूंगी। बोले हालेलुया। आप खुदा के हजूर में कह सकते हैं, खुदा मैं तेरे हजूर में चाहती हूँ, मेरा ये प्लान है, मेरा ये मंसूबा है, मेरा ये इरादा है, मेरा ये मकसद है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस प्लान को, मेरे इस इरादे को, मेरे इस मकसद को तू पूरा कर। और तब तक मैं तेरी हजूरी में झुका रहूंगा, तेरी हजूरी में मैं झुकी रहूंगी। हालेलुया। बोले हालेलुया। तो आस्तर ने कितने दिन का रोजा रखा जी? कितने दिन का रोजा रखा जी? अब दाऊद ने, खुदा का बंदा दाऊद जो है, उसने 7 दिन का रोजा रखा। दाऊद बादशाह ने कितने दिन का रोजा रखा जी? इसका जिक्र हमें 2 शमूएल उसका 12वां बाब उसकी 18वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। 2 शमूएल की किताब उसका जो 12वां बाब 18वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है कि दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोजा रखा। सबको जो फरमाइए, कितने दिन का रोजा रखा जी? जो नोट करें बेशक लिखना चाहते लिखते जाए, बाद में आप इन हवाला जात को पढ़ सकते हैं। तो उसने 7 दिन का रोजा रखा। अब दाऊद ने जब 7 दिन का रोजा रखा तो उसका एक बड़ा पर्पस था, एक मकसद था। मकसद ये था कि उसका बेटा सख्त बीमार था। दाऊद बादशाह का बेटा जो हत्तीउरिया से पैदा हुआ था, वो सख्त बीमार हुआ, और 7 दिन तक दाऊद ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और वो अपने खुदा के हजूर में गिरियावजारी करता रहा, रोता रहा, खुदा के हजूर में पुकारता रहा, कहता रहा कि खुदावंद तू मेरे बेटे को क्या कर, शिफा।
हालेलुया। तो दाऊद ने कितने दिन का रोजा रखा जी? दाऊद बादशाह ने सब बोले कितने दिन का जी? रात में बोले कितने दिन का? अब 7 दिन जब उसने रोजा रखा है तो 7 दिन उसने किया क्या? ये मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे लोग रोजा तो रख लेते हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रोजे में करना क्या है। समझते कि बस अब खाने से परहेज कर लिया, पानी से परहेज कर लिया, तो हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है जी? ये हमारा, हम समझते हैं कि जब वो खाने पीने से परहेज कर लिया है तो यही हमारा रोजा है। अब सुनिएगा, सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं करना। बड़ी बात, मैंने कहा दाऊद ने रोजा रखा और 7 दिन उसने किसको दिए? 10 मेरे साथ किसको दिए उसने? अपने अजीजों को दिए, अपने रिश्तेदारों को दिए, या किसी और को दिए? लिखा उसने 7 दिन किसी से बात भी नहीं की। ये भी देखिए, ये आप इस हवाले को बाद में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा 12वां बाब दूसरा शमूएल की किताब। और 7 दिन उसने किसी के साथ कोई बातचीत, ये बड़ी खास बात है, उसने 7 दिन अपने खुदावंद को दिए। बोले आमीन। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? फिर मेरे लिए तारीफ है। मैं ही आपको बता रहा हूं कि आपने रोजा कैसे रखा। अब 7 दिन उसने किसको दिए जी? अच्छा, हम कई दफा सिर्फ रोजे का टाइम पूरा करते हैं कि रोजे का टाइम जो है 24 घंटे का रखा है या कितनी भी देर का रखा है, तो बहुत सारे लोग उसका टाइम पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग रोजा रख के सो जाते हैं, बहुत सारे लोग रोजा रख के शायद वो टीवी देखते हो, शायद वो मूवीज देखते हो, चले ताकि रोजे का टाइम क्या हो जाए पूरा हो जाए। ये बाइबल के मुताबिक रोजा नहीं, वो बता बाइबल को कहते हैं इसके मुताबिक रोजा क्या है। मैंने कहा रोजा अपनी जान को क्या देना है जी? दुख देना। दुखी देते ना अपनी जान को, जब आप कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी जान को क्या दे रहे हैं? इसका मतलब है आप खुदा से कोई बात मनवा रहे हैं। खुदा के जुम्मे के खुदा, जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा, मैं खुदा ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। ये खुदा के जुम्मे आप एक कमिटमेंट करते हैं कि जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा, मैं तेरे हजूर में झुका रहूंगा, तेरे हजूर में झुकी। जिस तरह के दाऊद बादशाह ने किया, 7 दिन तक उसके मुलाजिम आते थे, उससे पूछते थे कि आपके लिए कुछ लाया जाए, आपको कुछ खाने के लिए दिया जाए, उनको मना कर देता, बल्कि उनसे बात तक नहीं करता था। मतलब ये नहीं था कि वो उनसे नाराज था या उनके साथ कोई नाराज, दाऊद की अपने मुलाजिमों के साथ कोई नाराजगी चल रही थी, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। बल्कि वो टाइम अपने खुदा को देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी और मेरे खुदा के साथ जो है हमारी रफाकत रहे, मैं अपने खुदा के साथ वक्त गुजार करूं, अपने खुदा के जुम्मे रोता रहूं, अपने खुदा के जुम्मे चिल्लाता रहूं, पुकारता रहूं। हो सकता है मेरा खुदा मेरी सुने और मेरा बेटा जीता रहे, मेरा बेटा शिफा पा जाए। बोले आमीन, हालेलुया। तो उसने 7 दिन का रोजा रखा दाऊद ने, और 7 दिन उसने किसको दिए? हालेलुया। तो सुनने वाली बात है, आप जितना वक्त भी, जितना टाइम भी आप रोजा रखें, मैं आगे जाके बताऊंगा कि आप कितने टाइम का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन सुनिएगा, आप जितना वक्त भी रोजा रखते हैं, टाइम रोजा रखते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है उतना टाइम भी खुदा को दे, अगर आप चाहते खुदा आपका मकसद पूरा कर दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है, अगर आप चाहते हैं खुदा उसको पूरा कर दे, तो यू नीड टू, आपको फिर क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप दरवाजा बंद करें, कमरा बंद करें, आप और आपका खुदा सिर्फ वो देख रहा हो, और फिर जो भी आपका मकसद होगा वो आसमान से नजर करेगा, खुदा उस मकसद को पूरा कर दे। जो हमने पढ़ा भी है खुदा के नाम 6 बाब और 16वीं आयत में पढ़ा भी है कि मसीह ने फरमाया तेरा बाप जो कशीदगी में देखता है, कौन देखता है जी? हमने उसको दिखाना है, सिर्फ उसको दिखाना है, और उसके जुम्मे झुके रहना है, ताकि वो आपके आंसू देखे, आपका रोना देखे, और आपको आपके रोजे का, आपकी दुआ का वो क्या दे जी? जवाब, अगर जवाब देना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपने जो 24 घंटे का रोजा रखा है और उसमें से सिर्फ आधा घंटा आपने खुदावंद को दिया, तो ऐसा रोजा खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद ये चाहता है आपने जितना टाइम भी और जो वो रोजा रखा है उतना टाइम आप खुदा, अगर आप जवाब लेना चाहते हैं, आप तुरंत चाहते हैं कि खुदावंद उसी वक्त आपको जवाब दे, तो वो जो टाइम है
بجائے آپ کسی اور کو دیں، وہ ٹائم آپ اپنے خداوند کو دیں، اور پھر دیکھیں گا کہ خدا کیسے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اور موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ موسیٰ نے کتنے دن کا روزہ رکھا جی؟ اس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور 8ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ خروج کی کتاب 34واں باب 28ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو موسیٰ ہے خدا کا بندہ، اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن کا روزہ رکھا؟ اب جب موسیٰ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، وہ 40 دن اس نے کس کو دیے؟ کس کو دیے جی؟ بولے اپنے خدا کے ساتھ وہ ملاقات کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، خدا کے حضور میں اس نے وقت گزارا۔ اور اسی طرح پھر ایلیا نبی جو ہے اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ ایلیا نے کتنے دن کا روزہ رکھا جی؟ اس نے بھی 40 دن تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، اور اپنے خداوند کو اس نے جو ہے وہ اپنا وقت دیا۔ اور پھر آخر میں میرا اور آپ کا جو خداوند ہے، میرا جو آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے، اس نے 40 دن اور 40 رات کا اس نے جو وفاقہ کیا، اس نے بھی روزہ رکھا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت کرتا رہا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ عموماً جب روزہ رکھتے تھے تو ان کی ٹائمنگ کیا تھی؟ میں چاہتا ہوں یہ حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 32ویں آیت۔ احبار کی کتاب 23واں باب اور 32ویں آیت۔ یہودی لوگ جب عموماً روزہ رکھتے تھے تو ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی تھی؟ 23واں باب اور 32ویں آیت۔ احبار کی کتاب باب نمبر 23 اور اس کی 32ویں آیت۔ کلام خدا میں مرقوم ہے، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت مانو۔ کیا کرنا جی؟ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ کیا کرنا جی؟ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک اپنی جانوں کو تم نے کیا دینا ہے جی؟ کیا دینا ہے تم نے؟ تو ایک شام سے لے کر دوسری شام تک۔ اب سنیے گا، جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ روزے کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، تو سن لیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو رکھنا چاہتے ہیں، آپ شام سے لے کر یعنی آج شام 5 بجے سے لے کر اگلی شام 5 بجے تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بائبل مقدس میں ایک ٹائمنگ ہے۔ آپ اس طور سے بھی، اس ٹائمنگ سے بھی، اس وقت سے بھی خدا کے حضور میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بشرطے کہ جتنا ٹائم آپ روزے میں ٹھہرے ہیں وہ ٹائم آپ خدا کو دیں۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ جتنا ٹائم بھی آپ روزے میں گزارتے ہیں اتنا ٹائم آپ خدا کو دیں، اور پھر دیکھیں گا کہ خدا آپ کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی جی؟ آپ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک کیا کر سکتے ہیں؟ اگلی شام تک روزہ تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ وہ بتا سکتا مجھے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ یعنی آج کی شام سے لے کر اگلی شام تک کتنے گھنٹے بنیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ، اب 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق۔ اب میں واپس اپنے اسی حوالے پر آؤں گا، کرسچن روزے پر، مسیحی روزہ۔ اب ہم بات کریں گے جی مسیحی روزے پر۔ یہ تو بات ہو گئی جو روزے خدا کے نبیوں نے رکھے، خدا کے لوگوں نے رکھے، یہودیوں نے رکھے، پہلے تو ان باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں مسیحی روزہ۔ مسیح خدا نے 6 باب متی کی انجیل 6 باب 16 آئے ہیں، جب تم روزہ رکھو، جب تم کیا کرو گی؟ کیا کرو جی؟ اب یہ آپ نے میری باتیں سیکھنی ہے، سنیے گا، میری طرف توجہ فرمائیں۔ اب ہمارا جاتا آپ نے، لیکن اب صرف آپ میری باتوں کو غور کیے۔ مسیح نے فرمایا مسیحی روزہ سن لے، جب تو روزہ رکھے۔ جو کرسچن روزہ ہے، جو مسیحی روزہ ہے، نہ تو اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب تجھے ضرورت محسوس ہو،
जब तेरी जिंदगी में कोई मुश्किल हो, जब तेरी जिंदगी में कोई परेशानी हो, जब तेरी जिंदगी में और मुश्किलात हो, बीमारियां हो, परेशानियां हो, रुकावटें हो, मुसीबतें हो, तब तू रोजा रख सकता है। ये मसीही रोजा है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि ये दिन, अच्छी बात है इन दिनों में अगर आप रोजे रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ईस्टर से 40 दिन पहले जो रोजे होते हैं हम समझे कि वो ही रोजे हम रख सकते हैं। नहीं, आप साल के किसी वक्त में, किसी पहर में, किसी टाइम में आप रोजा रख सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई आफत है, कोई तंगी है, आजमाइश है, आप तब भी रोजा रख सकते हैं। और मैंने कहा कि रोजे का पर्पस होना बड़ा जरूरी है। जब आप रोजा रखें तो उसके पीछे आपका मकसद होना बड़ा क्या है जी? ऐसा ही है कि आप ऐसे ही अपनी जान को दुख दें। आप मुझे बताएं, क्या अपनी जान को बगैर किसी मकसद के दुख देना रवा है? ठीक है, मुझे बताइए। क्या अभी को आपका कोई मकसद भी हो और आप जो वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से परहेज करना शुरू कर दें, बल्कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद होना जरूरी है। आपकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की मुश्किल है, किसी भी तरह की परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है, गुर्बत है, और आप इन मसाइल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजा रख सकते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। साल के किसी भी वक्त में आप दुआ और रोजे में क्या कर सकते हैं? अगर आपने शैतान से जंग लड़नी है और आपने खुदावंद से कुव्वत लेनी है, तो आप तब भी रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। एक जगह पर लिखा है कि शागिर्द एक शख्स में से बदरूम निकालने जाते हैं और बदरूम में से निकलती नहीं है, तो खुदावंद यीशु जो है उस बदरूम को उसी वक्त जो है उसके पास जाते हैं, उस शख्स में से उस बदरूम को निकाल देते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हम क्यों उसमें से बदरूम ना निकाल सके? तो मसीह ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। तो सुनिएगा, अगर आप शैतान पर फतह पाना चाहते हैं, रूहानी कुव्वत लेना चाहते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, तो आप तब भी रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। आप समझते हैं कि हम रूहानी तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं, आप तब भी दुआ और रोजे में ठहर सकते हैं और खुदा से आप उसकी कुव्वत को हासिल करेंगे। अब जब रोजा रखते हैं तो कई दफा हमें कमजोरी भी महसूस होती है जिस्मानी तौर पर, ठीक है। कई दफा हमें बड़ी जो कमजोरी महसूस होती है जब हम जिस्मानी तौर पर रोजा रखते हैं, तो जिस्मानी तौर पर वीकनेस, कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन सुनिएगा, बेशक जब आप रोजा रखते हैं जिस्मानी तौर पर आपको कमजोरी महसूस होती है, लेकिन याद रखिए दूसरी जानब, दूसरी तरफ आप रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। इसका फायदा क्या है? हालेलुया। आपको भूख ज्यादा लग रही हो, आपके तकलीफ होना शुरू हो जाए, या आपका बीपी लो हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हो भी सकता है कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, लेकिन दूसरी जानब आप रूहानी तौर पर मजबूत होते जाएंगे, रूहानी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। हालेलुया, बोले कि हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने फरमाया जब तू रोजा रखे, साल के किसी वक्त में भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, परेशानी है, आप तब रोजा और दुआ में क्या कर सकते हैं? ठहर सकते हैं। और फिर मसीह ने फरमाया और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत खुदा से, ये बड़ी खास बात है। जब रियाकार थे उस वक्त की बात मसीह खुदा कर रहे, उस वक्त में जो रियाकार थे, यानी जो अपने आप को बड़ा और जिताते थे, जो फकीह थे, फरीसी थे, वो जब रोजा रखते थे तो कलाम में मसीह खुदा ने फरमाया कि तुम रियाकारों की तरह अपनी सूरत खुदा से, जब तू रोजा रखे तो अपनी शक्ल नहीं बिगाड़नी, रियाकारों की तरह दिखाना नहीं है, रियाकारों की तरह जताना नहीं है, सबको बताते नहीं फिरना कि मैं रोजे में हूं, कि मैंने रोजा रखा है। नो नीड टू टेल एनीवन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो तूने क्या करना है? मुंह धो और अपने सर में क्या डालना, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोजादार जाए। हालेलुया। सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आज रोजा रखा है, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उदास रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना है? तूने अपने बाप के साथ वक्त गुजारना है, पोशीदगी में, अलहदगी में, अपने खुदा, अपने बाप के साथ वक्त गुजारना है, ताकि वो तुझे रोजादार जाने और जिस मकसद के लिए तूने रोजा रखा है वो तेरे उस मकसद को क्या कर दे। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब जरूरी नहीं है, अब आजकल
آج کل پتہ نہیں کیا کیسے کیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی بہت سارے لوگ سمجھتے کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہو تو ہمارے آگے جو وہ ٹیبل ایسے سجا ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں, بڑے سارے لوازمات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں بریانی بھی ہونی چاہیے, اس میں پکوڑے سموسے, یہ ساری چیزیں تو لازمی ہونی چاہیے, اور پیزا تو ہونا چاہیے. ماڈرن روزہ بھی کے لوگ ہیں کہ پیزا بھی لازمی ہونا چاہیے, اس میں فاسٹ فوڈ تو لازمی ہونا چاہیے. ہاں جی, سنیے گا, میں نے کہا کہ آپ کا روزہ مقصد کا روزہ ہے, کھانے پینے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس یہ لوازمات ہو کہ آپ کھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, میں ان چیزوں کے خلاف بھی بات نہیں کر رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو وہ کہ جنہیں صاحب منع کرتے ہیں جنہیں کھانی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں بتانے کی مقصد یہ ہے اگر یہ لوازمات نہیں بھی ہوتے تو آپ نے اعتراض نہیں کرنا. آپ نے خدا کے حضور میں آپ روزہ رکھا ہے, آپ نے اس کا جو پرپز ہے, جو مقصد ہے کہ میرا خدا میری بات کو سنے, میرا خدا میرے مقصد کو پورا کرے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا خدا مجھ پر رحم کر دے. یہ آپ کا روزہ ہے, یہ مسیحی روزہ ہے. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور مسیحی روزہ آپ کسی بھی وقت سال میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اور یقیناً میرا, اور آپ سال میں کسی وقت بھی روزہ رکھیں گے تو وہ خدا ضرور آپ کی سنے گا اور ضرور آپ کو جواب دے گا. ہاللیلویا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے, جو مسیح نے فرمایا مسیحی روزے میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے, آپ نے کس کو دینا ہے جی, زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ خداوند کو دیں, اور پھر دیکھیں گے کہ خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے کام پر. کوشش کرنی ہے کہ روزہ جب آپ نے رکھنا ہے تو اپنی زبان کا بھی ٹھیک استعمال کرنا ہے, کانوں کا بھی ٹھیک استعمال کرنا ہے. آمین. میں بندے کو سن لیا کہ میں روزہ لا رہا, ایک بندے نے روزہ رکھا ہے کہ میں روزہ لا رکھا تھا, تو پھر میں وہ گالا کرنے تو اللہ پتہ کرنا میں تو کہ لالا تو رکھا تھا, آج میں روزہ رکھے تھے بیٹا رکھا, پھر لالا رکھا تھا, پھر میں وہ گالا کرنے تو اللہ پتہ کرنا. تو ان ساری چیزوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کیا روزہ رکھا ہے تو میں تو ضروری نہیں, ہاں اچھی بات ہے جب آپ نے روزہ رکھا ہو تب بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر دن بھی ان باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, گالیاں دینے سے, بری باتیں کرنے سے. بائبل کا رسول کیا ہے, کوئی بھی گندی بات تیرے منہ سے. میں گاؤں میں گیا, بڑا پرانا واقعہ, میں اور میرے دوست سے سننے والی بات ہے, بڑا پرانا ایک واقعہ تھا. ایک گاؤں میں گیا میرے دوست کے ساتھ, تو میں کچھ سمجھتے کہ روزہ صرف ہمارے پیٹ تک ہے, کھانے پینے سے پرہیز کر لیا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا. میں گاؤں میں گیا میرے ایک دوست کے ساتھ, تو ان کے کوئی عزیز لگتے تھے, تو وہاں پر میں چلا گیا. اس گھر میں جا کے میں بیٹھا دعا کے لیے, اور اچانک سے وہ جس گھر پہ گیا وہاں پر ایک بہن تھی, بہت زیادہ بولنے والی وہاں پر ایک بہن تھی. تو وہ ایسا ہوا اچانک سے کہ ساتھ والے گھر میں وہ بہن کے دروازے کے آگے تھوڑا پانی آ گیا, تو وہ بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, بہن نے بولنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, جس گھر پہ ہم گئے تھے اس بہن کی بات بتا. تو وہ بہن جو ہے وہ بولنے لگ گئی, شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے دروازے کے آگے آپ لوگوں نے پانی پھینک دیا ہے, یہ ہے وہ ہے. کرتے کرتے بات جو ہے وہ گالیوں تک پہنچ گئی. بہن نے گالیاں دینا شروع کر دی, جس بہن کے گھر میں اس بہن نے گالا کھڑی شروع کر دی. اچھا جی بہن گالا کھا رہی سی, جی بہن گالا کھڑی جا رہی تھی, وہ بہن بڑی سکی سی, بڑی ماری سی, وہ بیچاری گالی سی کرتے گالا کھڑی جا رہی. اچھا خیر اتنے میں ایک اور بہن آئی, اس بہن کو اندر لے آئی. ہم اندر ہی بیٹھے تھے, تو بہن کو اندر لے آئے. تو میں اس بہن نے کہا اچھا بہن چل بول, ٹھیک ہو گیا, بڑی ہو گئی, ہندی بول بڑا تو بول رہا. بہن کو جا کر پانی پلا, کہ میں پانی نہیں پی رہا ہے, نہیں پانی پر لیا میں پانی نہیں پی. اور بہن پانی پلا, میرا گلا خشک ہو گیا, پانی پلا, نہیں میں نہیں پی رہا, کہ وہی پلا, میں روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کے سارا کچھ کر لینا بعد میں مارا گیا ہے. تو ایسا روزہ میں بتا دوں بائبل کے مطابق ایسا روزہ خداوند قبول نہیں کرتا. نماز کے طور پر کہہ دوں ایسا روزہ مسیح کبھی بھی قبول. کیا آپ روزے میں سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں اور اب صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ اپنی جانوں کو دکھ دے رہے ہیں,
آپ اپنے خداوند سے کوئی بات منوا رہے ہیں کہ خداوند میرا یہ مقصد تو پورا کر دے, میرا یہ کام تو پورا کر دے, میری یہ بات تو پوری کر دے, اے خداوند میرا یہ رکا ہوا کام ہے, اے خداوند تو اس کو پورا کر دے, ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر دے, کاروبار بحال کر دے, برکتیں آ جائیں. روحانی طور پر خدا میں تجھ سے نعمت لینا چاہتا ہوں, لینا چاہتی ہوں, میں روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتا ہوں, روحانی قوت لینا چاہتا ہوں, لینا چاہتی ہوں, روح القدس کا لباس لینا چاہتا ہوں, پاک روح کا بپتسمہ پانا چاہتا ہوں, پانا چاہتی ہوں. ایسے مقاصد جب آپ خداوند کے حضور میں رکھیں گے تو خدا یقیناً آپ کے مقاصد کو پورا کرے گا اور آپ کی زندگیوں میں خداوند جو وہ بڑے بڑے کام کرے گا. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور آپ جتنا وقت بھی, آپ جتنا ٹائم بھی, اور 24 گھنٹے کا جتنا وقت بھی آپ جب وہ روزہ دعا میں جھکتے ہیں, کوشش کیا کریں وہ ٹائم آپ خداوند کو دیں اور پھر دیکھیں گے کہ خدا کیسے آپ کے اندر سے. اور سب سے بڑی بات, جب آپ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں, روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کے اندر سے جو کمیاں ہیں خداوند کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. جو آپ کی کمزوریاں ہیں, جو جہاں پر بھی کمزوری ہے, غلطیاں ہیں, خداوند ان کو آپ کے اندر سے نکالنا کیا کر دیتا ہے اور آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے, آپ شیطان پر بھی غالب آئیں گے. میں صرف آپ جو وہ ختم کریں, جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے, نمبر 1 آپ شیطان پر غالب آئیں گے. نمبر 2 آپ بیماریوں پر بھی غالب آئیں گے. ہاللیلویا. یعنی اگر بیماریاں ہوں گی بھی تو آپ خدا کے حضور میں بڑبڑائیں گے نہیں, آپ مضبوط ہوں گے اور یقیناً خدا بیماریوں کو بھی آپ کی زندگی سے ختم کر دے گا. تیسری بات, جب آپ روزہ دعا میں جھکیں گے تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کی زندگیوں سے, اگر زندگی میں غربت بھی ہے تو خدا اس کو بھی آپ کی زندگیوں سے ختم کرتا جائے گا. آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. آپ دعا روزے میں جھکیں گے, اپنا مقصد خدا کے حضور میں رکھیں گے, خدا آپ کو قرضوں سے بھی آزاد کر دے گا, مشکلات سے رہا کر دے گا, پریشانیوں سے رہا کر دے گا. بڑے بڑے کام خدا جو ہے وہ آپ کے لیے کرے. اور نمبر 1 اور ایک بڑی خاص بات, جب آپ خدا کے حضور میں جھکیں گے, روزہ دعا کریں گے, جھکے رہیں گے, تو آپ کے جو راستے بند آپ کو نظر آتے ہیں, خدا ان راستوں کو بھی آپ کے لیے ہموار بنا دے گا, راستوں کو کھولنا شروع کر دے گا, آسمان کھول دے گا, آسمان کے دریچے خدا آپ کے لیے کھولنا شروع کر دے گا. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. ایک آخری بات, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ پادری صاحب ہم سنڈے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, اتوار کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بائبل مقدس میں سے پڑھ کے سنایا ہے. مسیح نے فرمایا 8 باب 16, جب تو روزہ رکھے, جب تو کیا رکھے گی, تو مسیح نے یہاں پر کسی سنڈے کی بات نہیں کی, اتوار کی. آپ سنڈے کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. میں نے یہ کہا اگر آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے, سنڈے کو آپ کو کوئی رکاوٹ بنتی ہے, آپ محسوس کرتے کہ میری زندگی کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, تو آپ اگر وہ مسئلہ ہی سنڈے کو آیا تو آپ سنڈے کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنڈے کو اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سنڈے کو مسیح خداوند جو وہ زندہ ہوئے, اتوار کے روز مسیح خداوند کیا ہوئے. بالکل یہی بات ہے, مسیح خداوند اتوار کے روز زندہ ہوئے. لیکن سنیے گا, مسیح خداوند یقیناً سنڈے کو زندہ ہوئے, لیکن یسوع سوال میں بھی زندہ ہی تھے. ہاں جی, کتنے لوگ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. مسیح خداوند اتوار کو بھی زندہ ہے اور سوال کو بھی کیا ہے, اور منگل کو بھی کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بدھ کو بھی کیا ہے, یعنی یسوع پورا ہفتہ ہی زندہ ہے. تو آپ ضروری جو سمجھتے ہیں کہ نہیں سنڈے کا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کسی وقت بھی ممانعت نہیں ہے, منع نہیں کیا گیا, آپ کسی وقت بھی, لیکن آپ کا پرپز ہونا چاہیے, آپ کا مقصد ہونا چاہیے. اور جب آپ مقصد کے تحت روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کو آپ کی دعا کا جواب دے گا, اور خدا آپ کی زندگی میں بڑا جو کام کرے گا. ہاللیلویا. نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا, جب یونا نبی کو وہاں پر بھیجا گیا اور خداوند نے یونا سے کہا کہ ان کے خلاف توبہ کی منادی کر, کیونکہ ان کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے. تو وہاں پر لکھا ہے جب وہاں پر انہیں پتا چلا کہ خدا ہمیں برباد کرنے کو ہے, ہماری بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچا ہے, خدا ہمیں مارنے کو ہے, ہلاک کرنے کو ہے, تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے روزہ رکھا
नैनवा के लोगों ने क्या रखा जी? पूरे वहां पर सबने रोजा रखा, बड़ों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, और जब वो यहाँ तक शीरखार बच्चों को भी रोजा रखवाया गया, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको भी रोजा रखवाया गया, बादशाहों ने रोजा रखा, गरीब सबने जो वो वहां पर रोजा रखा, और टाट बोला और सब बैठ गए खुदा के हुजूर में, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मकसद क्या था उनका रोजा रखने का? कि खुदा हमें माफ कर दे, खुदा हमें क्या कर दे तू। नैनवा के लोगों का रोजा रखने का मकसद क्या? ये यूना की किताब है, पढ़ सकते हैं। नैनवा के लोगों का रोजा रखने का मकसद ये था कि खुदा हमें क्या कर दे थी। और लिखा है खुदा ने क्या किया, आसमान से उनकी आवाज सुनी, उनकी दुआ का जवाब दिया, खुदा ने उन सबको माफ कर दिया। हालेलुया। इसलिए आप जरूर अपना मकसद खुदा के रूप में रखें, जो भी आपका पर्पस हो, और साल में किसी वक्त भी आप खुदा के रूप में दुआ रोजे में ठहर सकते हैं, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में भी जो बड़ा और अजीब काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में बड़े और अजीब काम करता रहे, तो दुआ में, रोजे में वक्त गुजारा करें, ठहरते रहा करें, और रूहानी तौर पर उसकी बरकत को उसकी हजूरी से हासिल करते हैं। आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में। सब दुआ कीजिए। हालेलुया। रबा शिदो कोबा सिंफा क्रियाला शदो कोबा लास कोदो कोरियाला सबा इन मांदिरिया सुनो कोबरिया इबारा शदो रोबा फिंदाराबा सीताराबा लिखा मंदोर बिया शिंदाराबा। दुआ कीजिए सब खुदा के हुजूर में, जो घुटनों के बल होकर दुआ कर सकते हैं वो दुआ कीजिए। शिंदाराबा राबा 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 सोरो बो 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 बीरी 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 तो राबा राबा। आज भी अगर कोई दुआ रोजे में है, आप दुआ कर सकते हैं खुदा के हुजूर में। शिंदाराबा खुदा से खुदा में हो खाकसार बना दे, हमें और अपने हुजूर में झुकने वाले बना दे। आप वक्त तक आपकी जिंदगी में अगर किसी तरह के मसाइल है, परेशानियां हैं, तो आप खुदा के हुजूर में दुआ करें। शंदा को सिबारा शंदारा बारा 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 दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल है, परेशानी, आप दुआ करें। अगर आपकी और जो किसी भी तरह की जो आपकी जिंदगी में कर्जे हैं, कर्जे जैसी लड़ते हैं, दुआ कीजिए। रबा 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 घुटनों के बल होकर दुआ कीजिए। खुदा हमें रिहा करते, ओ तू रिहा करने वाला खुदा है। बीमारी है, मुश्किल है, परेशानी है, लाचारी है, किसी भी तरह की रुकावटें हैं, दुआ कर सकते हैं। शंबाला बातोरा कबा सिद्धारा बातोरबा लीबराबा शिंदारा बरा 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 दुआ कीजिए। सुंदर बरा 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 आए सब दुआ करें खुदा के हुजूर में। वो जो मेरा और आपका खुदा है, और वो हमारे लिए जो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। हालेलुया। रबा बा 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 शिंदारा बरा 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 रे 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 दुआ कीजिए। कोई जुबान बंद ना हो, कोई आंख खुली ना हो, आप दुआ करते हैं खुदा के हुजूर में, और वो आपके लिए जो यकीन आसमान खोलेगा और यकीन खुदा बड़ा काम करेगा। सिद्धो खोबा ई बरा 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 रबा 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 इंदा बरा 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 रबा शिंदोरी हा बरा 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 पूरा बरा 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 शिंदा बरा 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 इंदा बरा 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 दुआ कीजिए। दुआ हाथों को उठा लीजिए आसमान की तरफ। हालेलुया। अपने आप को उसके रूप में दे दीजिए, और से कहते कि खुदा मुझे रूहानी तौर पर बरकत, रूहानी तौर पर ब्लेस कर। शिद्दा बना 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 री 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 मैं आजाद होना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। चिक्का तोड़वा मेरी जिंदगी से हर तरह की जो मुश्किलात है वो खत्म हो, मुसीबतें खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, लाचारियां खत्म हो। हाँ लाखी बात छोटो को बात लाखी बात शिद्दा बात ना बारा किंदा बात री 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 आसमानी बात यीशु मसीह के नाम जितनी जिंदगियां इस वक्त तेरे हुजूर में झुकी है, एक एक के लिए तेरे हुजूर में बरकत की दुआ करना। शिद्दारा बरा 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 बरा
यीशु के नाम में तेरी कुदरत, तेरी बरकत मैं तेरे लोगों के लिए मांग रहा हूं। जितनों ने खुदावन सीखा है कि खुदावन तेरी हजूरी में हम तुझे वक्त दिया करें, और खुदावन सीखा है कि जब हम रोजा रखें तो पोशीदगी में, अलहदगी में तेरे साथ वक्त गुजारें, ताकि तेरे नाम को मुबारक करें। हम सबको छू ले वापस मारी यीशु के नाम में ब्लेस कर। सारी जमात, सारी कलीसिया की मैं बरकत की दुआ कर। जितनों ने हमें लाइव ज्वाइन किया उन सब के लिए भी तेरे हजूर में मैं बरकत की दुआ करता हूँ। हम सबकी तू मदद कर, रहनुमाई कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सब मिलकर कहते हैं आमीन, हालेलुया। आए खुदावत के हजूर में, आज की इबादत का हदिया हम खुदावत के हजूर में देंगे। हदिये का गीत गाएंगे और जिक्र अपने हदिये जात खुदावत को देंगे। मसीह ने फरमाया दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आए अपने हदिये जात हम खुदावत को देंगे और गीत गाएंगे, उसके नाम को मुबारक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। कलवरी दे सहारे पापी बचने सहारे, कलवरी दे सहारे पापी बचने सहारे, कलवरी दे सहारे पापी बचने सहारे। Thank you.
आमीन, हालेलुया। सब तुम्हारे खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज की तमाम बरकत के लिए उसका शुक्र करते हैं, निहायत संजीदगी के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने आज जो बातें कलाम से हम सबके साथ शेयर किए हैं, खुदा ने सिखाया है, रोजे के ताल्लुक से हमें जो बातें सिखाई है, आज तमाम बातों के लिए उसका शुक्र करते हैं और सारे हदीजात के लिए उसका शुक्र करते हैं। आज की तमाम बरकत के लिए अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की तमाम बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो बरकत तूने हमें दी है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रगुजार है खुदा सारे हदीजात के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया। इसके आसमान को और की खते खूब भर रहे ताकि तेरे लोग किसी नेमत किसी बरकत के मोहताज ना हो। तो हम सब कुछ छूले बाप यीशु के नाम में हम सबको बरकत दे। बरकत देने वाला खुदा, छूने वाला खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं सारी कलीसिया सारी जमात की बरकत की दुआ करता हूँ और हम सबको तौफीक दे इसी तरह तेरी हजूरी में झुकते रहे और अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा बसर करते रहे ताकि हमारी जिंदगियों के फैसले से, हमारे बदलों के फैसले से अबाप इकलौते बेटे हमारे मदद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते रहे। हम सबकी मदद कर, सबकी रहमत कर। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते हैं, आमीन। आए खुदा की इस खाई में शामिल होते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी और जिस तरह अपने कर्जा को मुआफ करते हैं, तुम्हारा कर्जा मुआफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल बेशक रहे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त हम सबके साथ, दुनिया के पूरी ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा उसके नाम में।